what is solar eclipse. Solar eclipse, we can say like एक प्रकार से it is a eclipse of sun. Eclipse of sun, suppose it is sun and here it is moon and there it is earth. So due to the sun rays, if the sun rays which are coming and in between the moon is here, due to the moon some reason on the earth will not be able to see some portion. So here we can say like that some portion of the earth is not able to see the sun, this portion of the earth. So therefore वहाँ पर क्या हो गया, that is I said that सूर्य ग्रहण, solar eclipse. In that reason the sun will be possibly it will be visible but maybe partial visible, means partial visible and partial eclipse it will be there. So it can be like here it is partial portion of the sun is not visible, then it is known as partial eclipse, means large portion, means I said that somewhere Valiakar it is not visible, so it is annular eclipse, and total and possibly that the and particular reason the whole sun is not visible. This way the eclipse used to take place. Yes, so if I say that why it is in the news at present, an annular solar eclipse was visible in parts of South America on October 2nd, while a partial solar eclipse was visible in parts of South America. In the parts of the I said somewhere partial solar eclipse, and in the particular region there is an annular solar eclipse has been taken place in the portion of in the continent of South America. As well as it has been seen that Antarctica, North America, the Atlantic Ocean region and the Pacific Ocean region has also have gone through yes annular solar eclipse, or I said that partial solar eclipse. So one thing that you have seen during the solar eclipse, what happened, moon comes in between earth and sun. About solar eclipse, a solar eclipse occurs when the moon position itself directly between the earth and the sun. Is it okay? सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. ड्यूरिंग दिस इवेंट द मून ऑब्स्ट्रक्ट्स द सनलाइट either completely or partially or casting a significant shadow over certain regions of the earth. तो जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो पार्शियल पोर्शन ऑफ द सनलाइट ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जो कि अर्थ पे नहीं पहुंचता है. या तो हो सकता है कंप्लीटली ना पहुंचे किसी पोर्शन ऑफ द रीजन में, या थोड़ा सा पहुंचे, या कुछ शैडो बनाकर एनुलर. तो ये इस प्रकार से जब जिस रीजन में जैसा पहुंचेगा वैसा ही एक्लिप्स होगा. सोलर एक्लिप्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द न्यू मून फेजेस. जब न्यू मून का फेज चल रहा होता है, लाइक आई कैन से लाइक आप न्यू मून फेज एंड न्यू मून फेज का मतलब है कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जो चल रहा है कि मून की साइज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है. इन दैट केस इट हैपेंस, विच हैपेंस when the sun and the moon align on the same side of the earth. When the sun and the moon कहाँ पे align रहते हैं, on the same side of the earth पर. When the sun and moon earth के एक ही साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sun, moon and sun are on the same side of the earth. The new moon cycle occurs approximately every 29.5 days. हर एक 29.5 दिन में 29.5 डेज में न्यू मून साइकिल स्टार्ट होता है, विच इज़ द ड्यूरेशन इट टेक्स फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ. और ये जो ड्यूरेशन है, एक मून जो है अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में, रिवोल्यूशन करने में लगाता है. टिपिकली सोलर एक्लिप्सेस हैपन बिटवीन 2 to 5 टाइम्स ईच ईयर. यदि कहा जाए तो सोलर एक्लिप्स किसी रीजन में ये एक साल के अंदर लगभग 2 से 5 बार होने की
नंबर्स पाए गए हैं। द मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड अबाउट 5 डिग्रीज रिलेटेड टू द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। जो मून की ऑर्बिट है, यदि हम किसी मून की ऑर्बिट है और ये आप सपोज करें कि ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, एंड यहाँ पे अपना अर्थ इज टेकिंग रिवोल्यूशन अराउंड सन। अर्थ, तो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, यू कैन से दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और बीच में आपका क्या है, सन है। सो दिस इज, इट इज़ योर अर्थ। लेकिन होता क्या है कि ये जो ऑर्बिट अर्थ की है, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पर आपका क्या है, अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, और इससे थोड़ा सा टिल्ट होकर 5 डिग्री से टिल्ट होकर मून की ऑर्बिट होती है अराउंड द अर्थ। तो 5 डिग्री का क्या है, टिल्टेशन है, ऑर्बिट का टिल्टेशन 5 डिग्री का है यहाँ पर। यदि दिस इज द ऑर्बिट ऑफ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ का, तो थोड़ा 5 डिग्री थोड़ी सी एंगल बना के साथ में 5 डिग्री एंगल के साथ मून की ऑर्बिट है। द मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड अबाउट 5 डिग्रीज रिलेटिव टू द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, विच इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम when the moon is between the earth and the sun, its shadow either misses the earth or it is too high or low, it causes an eclipse। इसी कारण से समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी टोटल एक्लिप्स, कभी कभी थोड़ा सा एक्लिप्स आ जाता है, क्योंकि टिल्टेशन है, टिल्टेशन की वजह से शैडो कंप्लीट नहीं अर्थ पे पड़ता होगा, और कभी कभी तो ये 3 टाइप्स के सोलर एक्लिप्स इस कारण से हो जाते हैं। तो कौन कौन से 3 टाइप्स के सोलर एक्लिप्स हो जाते हैं? यस, इट इज़ टोटल सोलर एक्लिप्स, यू कैन से सोलर एक्लिप्स ओनली, एंड एनुलर सोलर एक्लिप्स मीन्स आपको एनुलर वलयाकार हो जाएगा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स में से थोड़ा सा होगा। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस, द फर्स्ट वन वी आर वॉचिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। दिस occurs when the moon completely covers the sun। जब पूरा मून कवर कर लेगा और इस कारण से सन की रोशनी कंप्लीटली अर्थ पे नहीं आ पाएगी, इन दैट कंडीशन देयर इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स, और ऑब्जर्वर्स ऑन द अर्थ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द मून्स शैडो एक्सपीरियंस अ टोटल सोलर एक्लिप्स। वहाँ पर क्या पहुँचेगा कि ऑब्जर्वर्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द मून, मून के सेंटर से देखेंगे, जहाँ पर मून के सेंटर का जहाँ शैडो पड़ रहा है अर्थ पे, वहाँ पे कुछ भी सन नहीं दिखेगा। During which the sky darkens and the sun's corona, its outer atmosphere can be seen। थोड़ा सा सन का कोरोना, आपका कोरोना जो दिखेगा सन का। There is another solar eclipse and it is an annular solar eclipse। In this scenario, the moon moves in front of the sun but is at or near its farthest point from the earth। मून जो है सन के सामने है, और इसका मतलब है अर्थ पर उसका शैडो आएगा, यस, लेकिन उस समय थोड़ा सा वो दूर हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा वो अर्थ के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाएगा, और ज़्यादा दूर हो जाएगा तो वहाँ पर कंप्लीट नहीं आएगा एक्लिप्स। यदि थोड़ा सा नज़दीक रहता है तो ज़्यादा, आप भी लाइट के आगे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, जितना आगे बढ़ाया आगे और पीछे करेंगे तो उस प्रकार से उसकी लाइट का एक्लिप्स जो उस पर शैडो पड़ेगा किसी चीज़ पर, वो छोटा बड़ा होता रहेगा। तो इसी तरीके से जब एनुलर सोलर एक्लिप्स होता है, उस केस में मून जो है अर्थ से रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा दूर होता है, और उस समय एनुलर एक्लिप्स होता है। एज ए रिजल्ट द सन अपीयर्स एज ए ब्राइट रिंग सराउंडिंग द मून, और उस समय थोड़ा सा सन का जो चारों तरफ एक रिंग नज़र आता है, अच्छे से लाइट नज़र आती है, ऑफ्टन रेफर टू एज रिंग ऑफ फायर भी से कह दिया जाता है। Another one it is partial solar eclipse। This type of eclipse happens when the moon only partially blocks the sun's light। जब सन की लाइट को जब मून केवल थोड़ा सा पार्शली ब्लॉक करे, रोके, तभी ऐसा होगा, रिजल्टिंग इन अ क्रेसेंट शेप्ड सन। और उस समय जो सन दिखेगा थोड़ा सा यस चंद्राकार क्रेसेंट शेप नजर आएगा। पार्शियल सोलर एक्लिप्सेस आर द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व टाइप। ज़्यादातर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादातर
यदि कोई बोला जाए कौन सा सोलर एक्लिप्स अर्थ पर होता है, तो वो होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। नंबर ऑफ टाइम इज मोर देन एनुलर एंड टोटल सोलर एक्लिप्स। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स की जो संख्या होती है जो पृथ्वी पर एक साल में होती है, वो एनुलर और टोटल सोलर एक्लिप्स की तुलना में ज़्यादा होती है। Another one, it is hybrid solar eclipse. This is the rarest form of solar eclipse. ये बहुत ही रेयर होता है जिसमें हाइब्रिड है, where the eclipse can shift between total and annular as the moon shadow moves across the earth. मतलब है ना तो टोटल सोलर एक्लिप्स है ना तो एनुलर सोलर एक्लिप्स है, इसके बीच वाला जो एक्लिप्स कहा जाता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। सम रीजन्स विल विटनेस अ टोटल सोलर एक्लिप्स। इस समय हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स जो है उसमें कुछ रीजन जो फील करेंगे कि यहाँ पर हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स में क्या देखा जाएगा। सम रीजन विल फील टोटल सोलर एक्लिप्स एंड इन सम रीजन दे विल फील देयर इज एन एनुलर सोलर एक्लिप्स। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दैट देयर इज इफ़ आई एम मेकिंग एन व्हाट इट इज़, सपोज ये आपका सन है, ये भी आपका सन है। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, इन केस ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स में बहुत छोटी छोटी लाइट नज़र आएगी, यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी, और यहाँ पर एक अंगूठी जैसा नज़र आएगा। टोटल सोलर एक्लिप्स में थोड़ी थोड़ी लाइट नज़र आएगी, कोरोना टाइप का, हल्का हल्का, और हल्का हल्का चारों तरफ सन का नज़र आएगा। लेकिन इन द एनुलर सोलर एक्लिप्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट नज़र आता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एनुलर सोलर एक्लिप्स, और ये आपका है टोटल सोलर एक्लिप्स। तो जब किसी रीजन में क्या हो, टोटल एट द सेम टाइम टोटल सोलर एक्लिप्स आ रहा हो और दूसरा जगह क्या है एनुलर सोलर एक्लिप्स आ रहा हो, तो ऐसे को बोलेंगे हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि विटनेस द टोटल, कुछ रीजन टोटल सोलर एक्लिप्स फील कर रहे हैं, तो कुछ रीजन दे आर फेसिंग यस, अदर्स विल सी एन एनुलर सोलर एक्लिप्स।